29. It is 5 o'clock on a cold February morning. Wing Commander K.S. Suresh steps into a staff car that will take him to an air base of India's western sector. The black car passes through barrack-type houses and stops at an Air Force security gate. A uniformed guard recognizes Suresh and salutes him smartly. Behind the gate stand MiG of IAF squadrons, each under a different commander. K.S. Suresh, called as Cookie, commands 321 Squadron. At 5:20 am Cookie is in a flight planning room. There are maps and identification charts on the walls. Today's order for Cookie is an air strike at Batala, Punjab, at 7 am. He will lead a two-plane formation against enemy 17th Armored Brigade of a hostile country. This mission is assigned by Command Headquarters. Wartime conditions are practiced as actually as possible. On this day Cookie is too busy to worry about the risks. He calls the meteorological officer to get the weather report: thick clouds at 550 meters, visibility 5 kilometers, a hedge at 400 meters, west wind at 15 kilometers per hour, and slight air disturbance. Now marker pens, rulers, protractors and compasses are waiting for him on a long wooden table. Cookie takes out a map from the shelf and chalks out the path and speed of the plane. In 1 hour the mission is planned. Then he goes to another room and discusses the target with an army officer. Squadron leader Bundle Tyagi is present there. He is Cookie's wingman on this trip. During these exercises, rank means nothing. Only 20 minutes are left before engine starting time. Cookie grabs helmet, oxygen mask and headset, and walks to the servicing station. There he examines forms certifying that every part in the plane has been checked. Then he walks around the plane to check for leaks, loose panels and pins. There are none, so he climbs into his seat, connects his oxygen supply and radio. Next he pulls out a safety pin from the seat, and then becomes live. If he pulls the cord, the seat with a parachute will rocket 200 meters out of the aircraft in less than a second. Finally, the last compulsory check before takeoff. It is called TAFLOP trim: air pressure, air brakes, ailerons, flaps, fuel instruments, oxygen, hydraulics and pneumatics. Now he begins to taxi. On the runway, wingman Tyagi joins him in another MiG-21, which is a single-seater fighter plane. Take-off permission received, the two pilots accelerate the runway. Their wingtips are just some centimeters apart. They lift off at 360 kilometers per hour and soon climb up and get 950 kilometers per hour. It is 6:45 am, 15 minutes before their time on target. At 6:55 am they reach their first checkpoint, a village named Mirthal down on the earth. Cookie begins to time his target. As they rise up to 450 meters, Tyagi's plane rocks violently due to air bumps. "A bit bumpy here," says Tyagi on radio. "Breakfast may come up before the bomb goes down," Cookie jokes. Two hunters appear far to the right as enemy planes. They turn away and vanish. There are clouds all around. The earth has disappeared too. The MiGs are fast approaching the target. Now both the planes dive below the clouds, their planes are flying lower. Cookie sees the target, an enemy tank, and he releases the bomb. This is a perfect opportunity to rehearse attack procedures and bomb aiming. At the time of firing, automatic camera captures the action. The two planes circle, then come down on another target, a bridge.
There is a strong wind, therefore they releases the bombs earlier, but with accurate calculation. We have got it right, they say. Visibility has become worse. Let's go home, says Cookie. Back at the base, they report to the army man. He admires them. Commanders, your planes were in the right place at the right time. You have given effective support to the army. Like every Indian fighter pilot, Cookie Suresh does several hundred hours of flying in a year. Generally, 2 daytime flights and 1 night sortie. This means that more than half of his working hours are devoted to flying, mission planning and reporting. For the rest of time, 41-year-old Cookie is an attack instructor, an air combat leader and a teacher of accurate weapon delivery techniques. He also sees that all the pilots in his squadron maintain this proficiency. Every few years, a pilot is rested for a year or two at a desk job. The wing commander of 321 Squadron K.S. Suresh is proud of IAF, so is IAF. By Paul watched in Reader's Digest, 75 years selection of articles. MiG-29। यह एक ठंडे फरवरी की सुबह के 5 बजे हैं। विंग कमांडर के.एस. सुरेश एक स्टाफ कार में बैठते हैं जो उन्हें भारत के पश्चिमी क्षेत्र के एक एयर बेस पर ले जाएगी। काली कार बैरक जैसे घरों से गुजरती हुई एयर फोर्स सुरक्षा गेट पर रुकती है। एक वर्दीधारी गार्ड सुरेश को पहचानता है और उन्हें स्मार्टली सल्यूट करता है। गेट के पीछे आईएएफ स्क्वाड्रन के मिग विमान खड़े हैं, प्रत्येक एक अलग कमांडर के अधीन। के.एस. सुरेश, जिन्हें कुकी कहा जाता है, 321 स्क्वाड्रन के कमांडर हैं। 5:20 बजे कुकी फ्लाइट प्लानिंग रूम में हैं। दीवारों पर मानचित्र और पहचान चार्ट हैं। आज कुकी का आदेश है, बटाला, पंजाब में 7 बजे एक हवाई हमला। वह दुश्मन के 17वें सशस्त्र ब्रिगेड के खिलाफ 2 विमानों की श्रृंखला का नेतृत्व करेंगे। MiG-29 की मुख्य विशेषताएं: 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान, फाजोट्रॉन RLPK 29 रडार फायर कंट्रोल सिस्टम, उन्नत एवियोनिक्स, वायु से जमीन पर हमले के लिए विभिन्न हथियार। MiG-29 का महत्व: हवाई श्रेष्ठता में उत्कृष्ट क्षमता, विभिन्न युद्ध अभियानों में भाग लेने की क्षमता, भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। यह मिशन कमांड हेडक्वार्टर द्वारा सौंपा गया है। युद्ध की स्थितियों को यथासंभव वास्तविक रूप से अभ्यास किया जा रहा है। इस दिन कुकी जोखिमों के बारे में चिंतित होने के लिए बहुत व्यस्त है। वह मौसम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मौसम विशेषज्ञ को फोन करता है। 550 मीटर पर घने बादल, 5 किलोमीटर दृश्यता, 400 मीटर पर धुंध, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पश्चिमी हवा, हल्की हवा की गतिविधि। अब मार्कर पेन, रूलर, प्रोट्रैक्टर और कंपास एक लंबे लकड़ी के टेबल पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुकी अलमारी से एक मानचित्र निकालता है और विमान के मार्ग और गति को चिह्नित करता है। 1 घंटे में मिशन की योजना बन जाती है। फिर वह एक अन्य कमरे में जाता है और एक सेना अधिकारी के साथ लक्ष्य पर चर्चा करता है। स्क्वाड्रन लीडर बंडल त्यागी वहां उपस्थित हैं। वह इस यात्रा में कुकी के विंगमैन हैं। इन अभ्यासों के दौरान रैंक का कोई महत्व नहीं है। अभी इंजन शुरू करने के लिए केवल 20 मिनट शेष हैं। कुकी हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क और हेडसेट लेता है और सर्विसिंग स्टेशन पर जाता है।
वहां वह विमान के प्रत्येक भाग की जांच की पुष्टि करने वाले फॉर्मों की जांच करता है। फिर वह विमान के चारों ओर चलता है ताकि लीक, ढीले पैनल और पिन की जांच कर सके। कोई समस्या नहीं होने पर वह अपनी सीट में बैठता है, ऑक्सीजन आपूर्ति और रेडियो कनेक्ट करता है। इसके बाद वह सीट से सुरक्षा पिन निकालता है और लाइव हो जाता है। यदि वह कॉर्ड खींचता है तो सीट एक पैराशूट के साथ विमान से 200 मीटर दूर जाएगी, इससे कम 1 सेकंड में। अंत में उड़ान भरने से पहले अंतिम अनिवार्य जांच, इसे TFFLOHP कहा जाता है। T ट्रिम, F एयर ब्रेक, L एलेरॉन, O फ्लैप, H फ्यूल इंस्ट्रूमेंट, P ऑक्सीजन। में शामिल होते हैं जो एक सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है। उड़ान की अनुमति मिलने पर दोनों पायलट रनवे पर तेजी से बढ़ते हैं। उनके विंग टिप केवल कुछ सेंटीमीटर अलग हैं। सुबह 6:55 बजे वे अपने पहले चेक पॉइंट मीरथल नामक एक गांव पर पहुंचते हैं। कुकी अपने लक्ष्य का समय निर्धारित करना शुरू करता है। जब वे 450 मीटर तक उठते हैं तो त्यागी का विमान हवा के बम्पर के कारण हिंसक रूप से हिलता है। यहां थोड़ा बम्पी है, त्यागी रेडियो पर कहते हैं। नाश्ता बम गिरने से पहले ऊपर आ सकता है, कुकी मजाक में कहते हैं। दूर दाएं और 2 हंटर विमान दुश्मन के विमान के रूप में दिखाई देते हैं। वे मुड़कर गायब हो जाते हैं। चारों ओर बादल हैं। धरती भी गायब हो गई है। मिग विमान लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दोनों विमान बादलों के नीचे गोता लगाते हैं, उनके विमान नीचे उड़ रहे हैं। कुकी लक्ष्य को देखता है, एक दुश्मन टैंक, और वह बम छोड़ देता है। यह हमले की प्रक्रिया और बम सटीकता का अभ्यास करने का एक आदर्श अवसर है। गोलीबारी के समय ऑटोमेटिक कैमरा एक्शन को कैप्चर करता है। 2 विमान चक्कर लगाते हैं, फिर एक अन्य लक्ष्य एक पुल पर उतरते हैं। एक मजबूत हवा है, इसलिए वे पहले बम छोड़ते हैं, लेकिन सटीक गणना के साथ। हमने इसे सही किया है, वे कहते हैं। दृश्यता और खराब हो गई है। चलो घर चलें, कुकी कहता है। बेस पर वापस वे सेना के अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। वह उन्हें प्रशंसा करता है, कमांडर, आपके विमान सही समय पर सही स्थान पर थे। आपने सेना को प्रभावी समर्थन दिया है। सेना अधिकारी आगे कहते हैं, आपकी सटीकता और समयबद्धता ने हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। आपका अभ्यास और अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कुकी और त्यागी अपने सफल मिशन के बाद संतुष्ट और गर्वित महसूस करते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट कुकी सुरेश जैसे पायलट आम तौर पर साल में कई 100 घंटे उड़ान भरते हैं। आमतौर पर 2 दिन की उड़ानें और 1 रात की सॉर्टी होती है। इसका मतलब है कि उनके काम के अधिकांश घंटे उड़ान, मिशन योजना और रिपोर्टिंग में बिताए जाते हैं। बाकी समय में 41 वर्षीय कुकी सुरेश एक हमला प्रशिक्षक, वायु युद्ध नेता और सटीक हथियार वितरण तकनीकों के शिक्षक हैं। वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके स्क्वाड्रन के सभी पायलट इस क्षमता को बनाए रखें। हर कुछ साल में एक पायलट को 1 या 2 साल के लिए डेस्क जॉब पर आराम दिया जाता है। 321 स्क्वाड्रन के विंग कमांडर के एस सुरेश भारतीय वायुसेना पर गर्व करते हैं और वायुसेना भी उन पर गर्व करती है।
पॉल वॉच द्वारा रीडर्स डाइजेस्ट 75 वर्षों के लेखों का चयन।